আসসালামু আলাইকুম। রদ্দে সুলকুলিয়ত মাসলক আলা হজরত জিন্দাবাদ, হুজুর তাজুসরিয়া জিন্দাবাদ। আপনারা এই অডিওটা আপনারা শুনেন, আপনাদের যদি দিলে যদি আল্লাহ রসুলের প্রতি যদি মহব্বত থাকেন, ইনশাআল্লাহ আপনারা বুঝতে পারবেন কিভাবে মানুষকে গুমরাহ করতেছেন। তারপরে এনাকে অপারেশন করা হবে। কার করবেন কলেমা শরীফে জিকির। সবাই তো কলেমা শরীফের অর্থ জানি, তাহলে একজন শেখ তিনিও তো কলেমা পড়াচ্ছেন। কি পড়াচ্ছেন? সত্যিকার অর্থে আল্লাহ ছাড়া আমার কোনো উপাস্য ইলাহ মাহবুদ নেই। তো এখানে তো পীর সাহেবেরও কোনো অবকাশ নেই, নবীরও তো অবকাশ নেই। আমরা কি বলছি নাকি নবী আমাদের ত্রাণকর্তা? নবীকে শিখেছেন আমি তোমাদের ত্রাণকর্তা, আমি তোমাদের মুক্তিদাতা, আমি তোমাদের বিপদের পাশে থাকবো, এমন কথা কি নবী শিখিয়েছেন? নবীও শিখাচ্ছেন তোমরা চাইলে আল্লাহর কাছে চাও। নবীও শিখাচ্ছেন, আল্লাহও বলছেন, নবীও তার সাথীকে বলছেন বিপদের অবস্থায় ভয় পেও না, আমাদের সাথে আল্লাহ আছেন। তাহলে নবীও শেখাচ্ছেন তার সাহাবী, যেটা কিয়ামত পর্যন্ত সকল ইমানদারের জন্য শিক্ষা, লা তাহজান ইন্নাল্লাহা মাআনা। নবী তো বলতে পারতেন, হে আবু বকর আমি থাকতে তোমার ভয় কি, বলতে পারতেন তো। এবং যুক্তিতে এই কথা বলার ভেতরে কোনো দোষও নাই, যুক্তিতে। কিন্তু আল্লাহর নবী যদি এই কথা বলে বসতেন, নাউজুবিল্লাহ, তিনি তো বলেননি, কথার কথা যদি বলতেন, তাহলে আর আমাদের এই মুসলমান নামে যারা বিভ্রান্ত তাদের দলিলের আর শেষ থাকতো না। কিছুই নেই, তারপরও কত কিছু বানাচ্ছে। কবরে পীর সাহেব থাকছে, উনি পীর সাহেব পাহারা দিচ্ছে, কত রকমের আকীদা, নাউজুবিল্লাহ বলেন। মানুষকে শেখাচ্ছে যে পীর সাহেব এত বড় পীর যে ওনার মুরিদ হলে মুরিদের সব খবর উনি রাখেন, নাউজুবিল্লাহ। এমন কথা আমাদেরকে শুনতে হচ্ছে। খবরদার না, আমাদের তো ওজিফাই হলো আল্লাহ হাজ, আমাদের মশকই হলো মুরাকাবাই হলো আল্লাহ হাজিরি, আল্লাহ নাজিরি, আল্লাহ মাই, আল্লাহ শাহিদি। আমার সাথে কে আছেন? আমাকে কে দেখছেন? আমাকে কে শুনছেন? এখানে নবীরও কোনো অবকাশ নেই, পীরেরও কোনো অবকাশ নেই। এই কথা শেখানোটাই নবীর দায়িত্ব। এই কথা শেখানোটাই নবীর দায়িত্ব। সকল নবী রসুলরা এটাই শিখিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আমি এবং আমার পূর্বে সকল নবী রসুলগণ সব থেকে ভালো কথা যেটা শিখিয়েছেন সেটা হলো এই কথা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। দিলের মধ্যে ইমান না থাকলে তো এরকম কথা বলবে। এদের দিলের মধ্যে স্রেফ আল্লাহ রসুলের প্রতি এত নফরত। আপনারা ভয়েসটা শুনেছেন তো, ভয়েসটার আমি অপারেশন করতেছি। मैं मुतमईन हूँ, सफ़ाअत मेरे रसूल की है, रसूल मेरे है और जन्नत मेरे रसूल की है। सुना दो जो खुद को कहते हैं जो हकीम, ये ज़मीन अल्लाह की है, हुकूमत मेरे रसूल की है। এই জাহিলটা কি জানে না সমস্ত নবী, আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর একত্রবাদের পরিচয় দিয়েছেন, আল্লাহকে এক মানার হুকুম দিয়েছেন, আল্লাহরই পূজা করার হুকুম দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলারই ইবাদত করার হুকুম দিয়েছেন সমস্ত নবীরা। এই জাহিলকে জানে না। কোনো নবী বলে না তোমরা আমার পূজা করো, আমার ইবাদত করো। কোন নবী বলে না, কোনোদিনও কিতাবে দেখাতে পারবে না। বেশক আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম প্রাণকর্তা, বেশক আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম হাকিম, বেশক আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম হাজির ও নাজির, ইলমে গায়বের খবর জানেন, বেশক আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম মালিক, বেশক আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম মুক্তিদাতা। সূরা ফাতিহার মধ্যে যেটা লেখা আছে, ইয়াকা নাবুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন, সূরা ফাতিহার মধ্যে যেটা লেখা আছে, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही मदद चाहते हैं। ইবাদতের মামলায় কোনোদিনও আল্লাহ তাআলা গায়ের খোদাকে কোনোদিনও সামিল করে না। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামকে এবং কোনো নবীকে, কোনো ওলিকে সামিল করে না। যেখানে মদদের বিষয়ে বলা আছে, ইয়াকা নাস্তাইন, हम तेरी ही मदद चाहते हैं, আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফে ইরশাদ করেন, ইস্তাইনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাত ইন্নাল্লাহা মা'আস-সাবিরিন। তাহলে मदद तलब करो, सब्र से मदद तलब करो, सलात से। सब्र क्या है? सब्र एक सिफात है। जब सब्र से मदद मांग सकते हैं यानी सिफात है, वो साबिर से क्यों नहीं है? जो उस साबिर सब्र को एक्सेप्ट किया तो कितना बड़ा वो पालमान होगा, कितना बड़ा वो तनस्सुर होगा, कितना बड़ा वो समतावान होगा। फिर उनसे क्यों नहीं हम मदद मांगे? और जो सलात जो सिफात है, तो मुसल्ला का जो सिफात है, जो नमाजी के
जो सिफा दे, हम उस नमाजी से क्यों नहीं मदद मांगे जो रहनुमा माना। और ईसा अलैहिस्सलाम अपने कौम से भी मदद मांगा और कौम को भी पता है हमें किस लिए हमें मदद मांग रहा है। अगर मदद करने में अगर कोई खुदा हो जाता माज़अल्लाह, तो फिर खुदा खुदा नहीं बनाता। अल्लाह के सिवा जो चीज़ अल्लाह ताला ने बनाया सृष्टि किया यानी सब मखलूक है। इस जाहिल को मैं चैलेंज करता हूँ, कुरान और हदीस और इजमा क़ियास के दरमियान या बिल्कुल साफ लफ्ज़ में दिखाते बिल्कुल रब ताला ने एक दूसरे को पूजने का हुक्म दिया। कभी ज़िंदगी में दिखा नहीं पाएंगे, कभी ज़िंदगी में। मदद तलब का रंग अलग अलग होता है, कोई 100 रुपया देता है, कोई 4 आना देता है, कोई 1000 रुपया देता है, ये भी मदद है। जिस्मानी तौर पे किसी को मदद किया, कोई रूहानी तौर पे किसी को मदद किया, हाकिमों की मदद, डॉक्टरों की मदद। पूजने का सूरत एक ही है, पूजने का रंग एक ही है, अलग अलग नहीं है, ना छोटा ना बड़ा। इस जाहिल कुर्सी पर बैठकर दिमाग में जो सोच कर बोल रहा है ये भी एक मदद है। जो जुबान से बोल रहा है ये भी एक मदद है। उस बोली से दूसरे को खुद की तरफ खींच रहा है, दूसरा सोच रहा है, ये भी एक मदद है। अगर मदद के लिए मैं बोलूँ तो रात दिन ख़त्म हो जाएगा, तो ख़त्म नहीं होगा। ये इंसान एक लम्हा चल नहीं सकता बगैर मदद के। मदद की किस्में 2 है, शयातीन से मदद मांगना, एक अल्लाह के वली से, एक अल्लाह के महबूब बंदे से मदद मांगना, बिल्कुल अलग अलग है। इनकी मदद सुनो, ये किससे मदद ले रहा है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बगैर जाने मानता नहीं, बगैर माने झुकता नहीं। पहले जानो, फिर मानो, फिर झुको। जानने के लिए सही इल्म होना चाहिए, सही इल्म यानी ज़रिए इल्म होना चाहिए, तब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानोगी। जब मानोगी तब रब को एक मानोगी, जब रब को एक मानोगी तब रब की बारगाह में झुकोगी। एक मन इल्म के लिए 10 मन अक्ल होना चाहिए, वरना शैतान भी अक्ल वाले थे। खुद को बड़ा समझा, फिर वो काफिर मरदूद हो गया। रोए ज़मीन पर सबसे बड़ा तौहीद वाला था। जब अक्ल को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में जब निसावर करोगे तब तुम्हारा ईमान सही सलामत रहेगा। जब से दुनिया बनाया रब ताला ने, तो नबी की मदद तब से लेकर मरने के बाद, हासर में जन्नत से जाने के बाद भी मदद मिलता रहेंगे। नबी की ही बदौलत हम सब वजूद में आए हैं धरती पर। नबी के खातिर रब ताला ने कायनात को बनाया है। असल में बाबा आदम अलैहिस्सलाम को जो बनाया है, असल में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खलीफा है वो आदम अलैहिस्सलाम। जब रब ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद जब रूह अंदर डाली तो रूह बाहर निकल गया। रूह को पता चला अंधेरा है, तो रूह को मालूम है मैं नूर के बगैर नहीं ठहरूंगा, तो रब को नहीं मालूम अस्तगफिरुल्लाह। जब नूर मोहम्मदी की जब नूर मुबारक को जब बाबा आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जब डाला तब रूह रुका। रूह जब रुका आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हुए। जब आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हुए, जब धरती पर रब ताला ने भेजा, तब हम सब वजूद में आए। तो किसकी बदौलत? नबी की नूर की बदौलत, नबी की बदौलत। और जब आदम अलैहिस्सलाम रोए, 300 साल रोया, तो अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की, तो नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से वसीला लेकर जब दुआ किया तो रब ताला ने कबूल किया है। तो हमारा आदि पिता बाबा आदम अलैहिस्सलाम, जो आदम अलैहिस्सलाम के जो वफ़ादार होंगे, जो उनकी सुन्नत पर अमल करेंगे, तो हर मुश्किल में, हर मुसीबत में तो नबी को याद करेंगे। और तुम सिरात मुस्तफ़ा लिखते हो और पचर पसर ऐसे करते हो माज़अल्लाह, जैसा आम इंसान की। सिरात का माना तुझे मालूम नहीं है। सिरात किसे कहते हैं? सिरात उसे कहते हैं जिस पर कोई चले। जब तुम किसी मिनिस्टर हो या मंत्री को अगर घर में बुलाते हो या स्टेज में बुलाते हो, उनकी कितनी तारीफ़ करते हो। अगर जो तारीफ़ के लायक है नहीं, तुम तारीफ़ पे तारीफ़ करते रहते हो। और जिस नबी का ऐब नहीं है तुम उनका ऐब निकालते हो। तुम नालायक उम्मती हो, लायक उम्मती नहीं हो। कहने में तो बहुत कुछ है, दिन बीत जाएंगे, रात बीत जाएंगे। अगर दरिया को काली बना दिया जाए, अगर दर्द तो कलम बना दिया जाए, तो नबी की आजमत की बात कभी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि नबी ने खुद फरमाया, मेरा हकीकत रब के सिवा कोई नहीं जानता। उस दर वाले जो अबू बकर जो साथ में रहे,
जो गारे हिरा में रहे वो नहीं समझ पाया तुम इस दर का तुम काटमुल्ला तुम समझ जाओगी नबी की आजमत, तो बिल्कुल नामुमकिन है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत कह दिया मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ना अहले हदीस कहेगा, ना देवबंदी कहेगा, ना फराजी कहेगा, ना ला मजहबी कहेगा, ना फुरफुरा वाला कहेगा, कोई भी नहीं कहे। खालिस बरेलवी सुन्नियों का मुकद्दर है, नबी हमारे है और किसी का नबी नहीं है। खालिस नबी सिर्फ जन्नती सुन्नी बरेलवियों का नबी है। इसकी मिसाल मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। एक होता है तरबियत, एक होता है रहमत, एक होता है मोहब्बत। तरबियत उसे कहते हैं जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। जब बच्चे जब सो जाते हैं, जब माँ की रहमत उन पर आती है, तब बच्चे को सुला देता है, ये है रहमत। और नबी की मोहब्बत, जो नबी से मोहब्बत करे दिल से और नबी की दुश्मन को दिल से बुरा जाने, ये है नबी की मोहब्बत। आप बताओ जालिमो, मोहब्बत किससे होता है? शिरक ठहरा है जिसे ताज़ीम नबी, उस बुरे मज़हब को लानत कीजिए। साने बुखारी और कुरान शरीफ पढ़ के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत को समझा नहीं, फिर तुमने क्या पढ़ा? तेरे से तो ज़्यादा कुत्ता अच्छा है जो वफादार है। बांधे बांधे पत्थर पेट पे फिर भी हक है, दोस्त तो पानी है उनके हाथ में, दाना है उनके हाथ में, कुदरत रसूलुल्लाह की मुख्तारे कायनात है, जो चाहे उनसे मांग लो, अल्लाह ने सारी नेमतें देता है उनके हाथ में, कुदरत रसूलुल्लाह की। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदात न दर दस्त जीद हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। सुलेकुल्ली जाहिल मौलवी नबी के ऊपर उंगली उठाते हो। अल्लाह बड़ा है, तू बड़ा है। जो अल्लाह की बात मानेगी वो नबी की तारीफ करेगा, जो मौलाना की बात मानेगी वो उनकी घर में जाएगा, जो अल्लाह की बात मानेगी अल्लाह वालों की घर में जाएंगे। अल्लाह वालों की घर में, मस्जिद में, हर मस्जिद में अल्लाह की रसूल की तारीफ होना चाहिए। हर मस्जिद में या रसूल अल्लाह की अलमदद होना चाहिए, तो अल्लाह की बात मानी जाएगी। क्योंकि अल्लाह ने पुकारा या अय्युहन नबी, हम बंदा होकर हम तो पुकारते हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी हनफी बरेलवी, हम यह करके पुकारेंगे हर मदद, हमारे हर ज़रूरत, हमारे हर चीज़ देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला वो पावर इख्तियार दिया है। अगर तुम्हें नबी से चिढ़ है, तुम्हें इतराज हो सकता है, हमें नहीं। इसीलिए हमारे मस्जिद अलग है, तुम्हारा मस्जिद अलग, इसीलिए हम अल्लाह वालों के घर में जाते हैं और तुम मस्जिद जरार वाले के घर में जाते हो। जो मस्जिद रब ताला ने हुक्म दिया इस मस्जिद को तोड़ो, क्योंकि उस मस्जिद में नबी की बुराई होती है। रब ताला जो कुछ करता है गनी होकर करता है, बंदा जो कुछ करता है तो रब की मदद से करता है। हम सब नबी की मोहताज हैं, नबी रब की मोहताज है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर की अगर तफसीर पढ़ लेता तो जाहिल, तो कम से कम ईमान सही सलामत रहता तुम्हारा। थानवी को रहमतुल्लाह अलैह ही कहने वाला कभी ईमान सलामत नहीं रहेगा। अच्छी सोच, बेहतरीन इबादत। आप सुनो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नस्तईन की जो हकीकत आप सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद को अल्लाह की मदद कहते हैं, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद को अल्लाह की मदद कहते हैं, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद को अल्लाह की मदद कहते हैं, मौला अली करमुल्लाह अज़हु की मदद अल्लाह की मदद कहते हैं। इमाम हुसैन पाक की मदद अल्लाह पाक की मदद, इमाम हसन पाक की मदद अल्लाह पाक की मदद, इमाम जैनुल आबिदीन की मदद के अल्लाह पाक की मदद, इमाम बाकर की मदद अल्लाह पाक की मदद, इमाम जाफ़र सादिक की मदद अल्लाह पाक की मदद, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मदद अल्लाह पाक की मदद, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मदद अल्लाह पाक की मदद, जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मदद अल्लाह पाक की मदद, तमाम सहाबा की मदद अल्लाह पाक की मदद है। इमाम आज़म अबू हनीफा की मदद अल्लाह पाक की मदद है। इमाम बुखारी की मदद अल्लाह पाक की मदद है। मुस्लिम की मदद अल्लाह पाक की मदद है। इमाम तिरमिज़ी की मदद अल्लाह पाक की मदद है। इमाम शाफ़ी की मदद अल्लाह पाक की मदद है। इमाम अहमद बिन हम्बल की मदद अल्लाह पाक की मदद है।
سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی مدد اللہ پاک کی مدد ہے، سرکار غریب نواز کی مدد اللہ پاک کی مدد ہے، سرکار داتا علی حزبری کی مدد اللہ پاک کی مدد ہے، سرکار علی حجی کی مدد اللہ پاک کی مدد ہے، سرکار مقدم اشرف جہانگیر سمنانی کی مدد اللہ پاک کی مدد ہے، سرکار الحق پنڈوی کی مدد اللہ پاک کی مدد ہے، شاہ جلال یامانی کی مدد اللہ پاک کی مدد ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کی مدد اللہ پاک کی مدد ہے، سرکار مفتی اعظم ہند کی مدد تو اللہ پاک کی مدد ہے، سرکار تاج الشریعہ کی مدد اللہ پاک کی مدد ہے، دھرتی پر جتنے اولیاء کرام آئیں گے سب کی مدد اللہ پاک کی مدد ہے۔ اب یا قانستعین کا مطلب سمجھا، ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ خدا جب دین لیتا ہے عقل چھین لیتا ہے۔ السلام علیکم۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، حضور تاج الشریعہ زندہ باد، حضور خواجہ قوت فی الہند زندہ باد، حضور غیاث ملت زندہ باد، حضور مہدث کبیر زندہ باد، حضور گلزار ملت زندہ باد، حضور ارسلان رضا زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ السلام علیکم۔